Hare Krishna. So today we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 1, chapter entitled Observing the Armies, Arjun Vishad Yoga. Text 28. हमने पिछली बार इसको डिस्कस किया था थोड़ा, फिर से आगे और करेंगे इसमें और देन कुछ अगले श्लोक देखेंगे. Please repeat after me. Arjuna uvacha दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते. One from Prabhuji, one from Mataji. Arjuna uvacha दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण. No, we have to recite after Mataji. युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. What word meaning? Arjuna uvacha. Arjuna said, Drishtva, after seeing, imam, all these, swajanam, kinsmen, Krishna, O Krishna, yuyutsum, all in a fighting spirit, samupasthitam, present, sidanti, are quivering, mama, my, gatrani, limbs of the body, mukham, mouth, cha, also, parishushati, is drying up. Translation purport by His Royal Highness Abhay Chanaman Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Arjuna said, My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Purport. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods, whereas a non-devotee, however advanced he may be in material qualifications, by education and culture, lacks in godly qualities. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically, the whole community, all blood relatives of Arjuna, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but to his soft heartedness, a characteristic of pure devotee of the Lord. It is said, therefore, Yasya asti bhakti bhagavati yakinchana sarvair gunastatra samasate surah harava bhaktasya kuto mahadguna Manorathena sati dhavato bahihi. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Srimad Bhagavatam 5:18-12.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। Hare Krishna. So welcome everyone once again for our weekly discussion Bhagavad Gita. 1.28 is what we are discussing. Some discussion we had done in the last meeting also. So far we have seen in the Bhagavad Gita how these two armies have come in front of each other, है ना। एक armies कैसे युद्ध करने आए हैं, धृतराष्ट्र के क्या questions थे, उनका आंसर कैसे दिया है संजय ने, दुर्योधन की कूटनीति, diplomacy of Duryodhana we have discussed, war cry we had discussed about the war cry, different soldiers from the both sides, marshal generals, commander in chiefs, they blew their respective conches, and the signs of the victory of the Pandavas we have discussed. Then Bhakta Vatsal Krishna, that section was there. How Krishna is serving his devotee, his pure devotee. How Krishna becomes under the control of his pure devotees out of love for them, right? And Arjuna requested Krishna to bring his chariot between the two armies. So Arjuna, Prabhupada makes it clear in that purport that Arjuna did not come here for peace. शांति प्रस्ताव नहीं था अर्जुन के मन में जब उन्होंने बोला कृष्ण को कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाइए। He wanted to just finally see कि कौन कौन आया है यहाँ पर युद्ध करने के लिए और किस किस की मृत्यु उसको खींच कर लाई है यहाँ। Arjuna was that confident in the war, right? And he had proven himself in the Mahabharata. So many battles have happened earlier also, especially Battle of Virat. Then when Pandavas were in the exile, at that time, this Duryodhana and party, they got in a fight with Gandharvas, and these Pandavas had come and saved them. So they had proven themselves, and now also Pandavas did not have any doubt. Arjuna was not in a doubt कि युद्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं देखूं कितनी सेना उनके पास है कितनी मेरे पास है, कैलकुलेशन मिसमैच तो नहीं हो गया है कुछ। But he came here to confront his opposite party. But Krishna does something peculiar with Arjuna. कुछ ट्रिक करते हैं कृष्ण। क्या ट्रिक करते हैं, क्या देखा हमने अब तक? एक श्लोक में बोला कि है ना वो कुरुओं को behold, O Arjuna, see the Kurus who are here to fight with you. But रथ कहाँ लेके जाते हैं कृष्ण अर्जुन का?
द्रोण एंड भीष्म, क्योंकि स्नेह तो उनसे था ना, बाकी से तो चलो स्नेह भी नहीं था, है ना, अदर्स वर एनिमीज ओनली, बट भीष्म और द्रोण जिनके साथ में सॉफ्ट कॉर्नर था, उनके सामने ले जाके कृष्ण ने रथ को रोक दिया। अब देखो अर्जुन, ये हैं जिनके साथ तुमको युद्ध करना है। एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस अर्जुना से सी, ये संजय उवाच है, और उससे पहले 25th श्लोक में 24 संजय उवाच बोल रहे हैं ना, एवं एवं तो ऋषिकेशो, है ना, सेनयोर्भयोर मध्य स्थापित रथोत्तम। 24वें श्लोक में संजय ने बताया है धृतराष्ट्र को कि कृष्ण ने रथ रख दिया है दोनों सेनाओं के बीच में। फिर 25वें श्लोक में बता रहे हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः, किसके सम्मुख रखा रथ? भीष्म और द्रोण के सामने। सर्वेशाम च महीक्षिता। एंड देन उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनिति तत्, है ना, कि देखो, लॉर्ड सेड जस्ट बिहोल्ड वृथा ऑल द कुरुज असेंबल्ड हियर। नहीं, कृष्णा इज नॉट सेइंग ऑल द कुरुज, ही इज सेइंग भीष्म द्रोण ओनली। सामने उनके रखा है, बोल रहे हैं देखो सब कुरुओं को देख लो। एंड देन अर्जुना सेज दिस वर्स, कि मेरे मित्रों और संबंधियों को देखकर इस युद्ध की अवस्था में मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। सो कृष्णा डज दिस बिकॉज कृष्णा वांट्स टू ब्रिंग अर्जुन इन द इल्यूजन। अभी उनको मोह में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता है कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय, मुझे धर्म की व्याख्या करनी है, अभी भगवत गीता ज्ञान देना है, इसलिए अर्जुन को अभी मोह में डालना है, राइट? सो नाउ अर्जुन इज सेइंग दिस वर्स कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, और आगे भी और लक्षण अर्जुन अपने बताने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज ही, हो सका तो 11:10 के पहले। है ना? लेकिन अर्जुन को यहाँ पर वीक, कमजोर कौन बना, क्या बना रहा है? व्हाई इज अर्जुन बिकमिंग वीक? इन वन सेंटेंस इफ वी कैन से, भीष्म द्रोण को देखा तो उनकी ऐसी अवस्था हुई, गुरुओं को देखा उनकी ऐसी अवस्था हुई। तो व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग हिम वीक? मोह, अटैचमेंट, है ना, लगाव। अटैचमेंट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? लगाव बोल सकते हैं? नहीं, दया नहीं, दया कैसे हुई? अटैचमेंट है, अटैचमेंट डिटैचमेंट। तो अटैच का मतलब क्या होता है? चिपक जाना। जुड़ने में समझ में नहीं आता ज्यादा, चिपकना। जैसे एक वो पिन आता है ना, पेपर क्लिप्स आता है, तो पेपर्स को हमको अटैच करना होता है आपस में, सीएस यूज इट फाइल्स मैनेजमेंट करने के लिए। आजकल कंप्यूटर में होता है, ईमेल हम भेजते हैं, अटैचमेंट भेजते हैं ना साथ में फाइल, वो चिपक जाता है उसके साथ में, अभी छूटता नहीं है। वो ईमेल से अटैचमेंट छूटता नहीं है ना। अब किधर भी वो ईमेल को भेजोगे, फॉरवर्ड करोगे तो जाएगा साथ में अटैचमेंट, राइट? तो दो पेपर्स को हमको क्लिप करना है साथ में, वो अटैच हो जाता है। सो अटैचमेंट विद द फैमिली मेंबर्स इज व्हाट इज मेकिंग वीक, व्हाट इज मेकिंग अर्जुना वीक, है ना? लेकिन अर्जुन क्या इसमें दे रहे हैं, यहाँ पर जो कारण बता रहे हैं नहीं युद्ध करने का, हमने सेक्शंस का डिस्क्रिप्शन दिया था लास्ट टाइम, 2-2, 3-3 श्लोकों में क्या क्या कारण बताए हैं अर्जुन ने। तो ये सेक्शन कौन सा है? हु कैन रीड, हु नोट इट डाउन? हाँ, 27-28 ये श्लोकों में, 28-30, 27-30 बोल सकते हैं, 27 में भी बोला है उन्होंने, बट यस एक्चुअली 28-30 बिकॉज अर्जुन हैज स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन इन वर्स नंबर 28। तो यहाँ पे क्या कारण बता रहे हैं अर्जुन, क्या भाव आ रहा है उनके मन में? अर्जुन डज नॉट से दैट मैं बहुत अटैच्ड हूं, वो क्या बोलते हैं? करुणा, ओ, कंपैशन। देखो 27 श्लोक में बोला ना, कृपया पर्याविष्टो, कृपया मतलब आउट ऑफ कंपैशन। संजय इज सेइंग दैट आउट ऑफ कंपैशन अर्जुना सेड दिस, एंड देन द नेक्स्ट श्लोक कम्स। लेकिन हाउ डू वी नो कि ये करुणा नहीं है? देख, करुणा का मतलब क्या होता है? दया, करुणा, इसका मीनिंग क्या होता है?
पास जो है और किसी के पास नहीं है, हम उसको दयावश देना चाहते हैं, है ना। उससे कोई संबंध है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, कोई भूखा मिल गया उसको हम दे देते हैं, करुणा होती है, राइट। और कोई कहीं प्रॉब्लम है की सहायता कर देते हैं। कभी कभी गाड़ी में किसी के पेट्रोल, स्कूटर पे पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो पीछे से कोई तो आता है, वो बोलता है अरे बैठ, मैं गाड़ी चला के लेके जा रहा हूँ, बोलता है अरे बैठ, और वो पीछे से एक पैर लगाता है। दिस टेक्नोलॉजी ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया, इट इज नोवेयर एल्स फाउंड। है ना, वो पेट्रोल पंप तक धक्का लेके जाता है, उसका रास्ता किधर और था, बोलता है ठीक है मैं उधर को पहुंचा के फिर जाता हूँ, है ना, कंपैशन। लेकिन अर्जुन जो है बोल रहे हैं, हाँ, सो अर्जुन कंपैशन का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि अर्जुन एक्चुअली करुणा नहीं दिखा रहे हैं, अर्जुन आसक्ति, आसक्ति है शब्द, अटैचमेंट। आप बोल रहे थे लगाव इज द राइट वर्ड। हाँ, आसक्ति, है ना, आसक्ति इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो अर्जुन की आसक्ति है असली कारण, पर अर्जुन बोल रहे हैं करुणा, ये कैसे समझेंगे हम? हाउ डू वी नो? नहीं, हाउ डू वी नो? आसक्ति, वास्तविक कारण अर्जुन के रोने का आसक्ति है, करुणा नहीं है, कैसे जाने? पहले दुश्मन दिए, दुश्मनी की है ना। हाँ, हाँ, उनके लिए क्या करुणा करनी, वो तो दुश्मनी है ना उनके। ऐसा लगता है कि नहीं, करुणा, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न समझा आपको, कि अर्जुन कह रहे हैं कि करुणा, संजय ने बोला कृपया पर्याविष्टम, है ना, कि करुणा से अर्जुन ने ऐसा बोला, और अर्जुन बोलने वाले हैं आगे। देखिए, देखो श्लोक, चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं एक बार। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्तैव तत्व त्वक्चैव परिदह्यते। पढ़िए ट्रांसलेशन, एनीवन? मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाँ, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, हाँ, और मेरी त्वचा जल रही है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। न चो शक्नो में वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ट्रांसलेशन पढ़िए, somebody else। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल का कारण दिख रहा है, मंगल के कारण। My mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. Right? ये सब सिम्टम क्यों आ रहे हैं? 28 to 30 is compassion. कृपया पर्याविष्टु। Out of compassion, अर्जुना says this, है ना? परंतु एक्चुअली में दया करुणा है क्या? नहीं है, वो आसक्ति है। ये कैसे हम जानेंगे? ये श्लोक पढ़ के हमको ये सिद्ध करना है कि एक्चुअली ये करुणा नहीं है, ये आसक्ति है, ये कमजोरी है। ये 25वें श्लोक से पता लग रहा है जब कृष्ण और वो द्रोण के सामने जो रखता है, और उससे जो अटैचमेंट है वो दिखता है, और बाकी दो श्लोक भी कांपना, मतलब आप अगर आप मना कर सकते हो ना, तो आप मना भी कर सकते हो युद्ध के लिए, मतलब क्योंकि आपके पास पावर है। लेकिन यहाँ पे कांपना मतलब उनको पता है कि सब मर जाएंगे अगर मैं, तो पर मेरा जो और मुझे ही नुकसान हो, क्योंकि उनके अंदर जो अटैचमेंट है उसको। हाँ, तो कैसे हम ये सिद्ध करें? आप सही कह रहे हैं, पर हम सिद्ध कैसे करें कि ये अटैचमेंट है, करुणा नहीं है? प्रश्न ये है। तो हाँ, यदि कोई बहुत दुख में है, किसी को यदि हम बहुत पीड़ा में देखते हैं, तो ऐसे सिम्टम आ सकते हैं,
हम कांपने लग जाएं। हमने वो अवस्थाएं देखी नहीं है। यदि जैसे कलिंग का युद्ध हुआ था, सम्राट अशोक ने आप उसके बाद बुद्धिज्म धारण कर लिया था। इतना मारकाट हुआ, एक जब वो उधर गए, उन्होंने मृत शरीर को देखा तो उनकी हालत, मतलब वो, उन्होंने इतना वैराग्य आ गया था उनमें कि मैंने ऐसा किया, इतनी करुणा उनमें आई थी, उन्होंने सब छोड़ दिया कि नहीं करना ही नहीं है युद्ध, राजा ही नहीं बनता। तो वो करुणा हो सकती है किसी में ऐसी, राइट। कभी कभी किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, माताएं जाती हैं कि हम उनको ढाढ़स बनाएंगे, 5 मिनट बाद में वो माताओं को ढाढ़स बनाने वाला कोई चाहिए होता है ना। माताएं और प्रभु किसी के साथ में भी हो सकता है, राइट। वी गो टू हेल्प समबडी एंड वी ऑल्सो गेट कॉट इन द सेम इमोशंस। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, आई कांट इवन सी दिस हैपनिंग टू समबडी। होता है ना। वही सिम्टम अर्जुन में आ रहे हैं, तो करुणा से आ सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि वो आसक्ति है, करुणा नहीं। ये जो अर्जुन को हो रहा है, ये आसक्ति के कारण हो रहा है, करुणा के कारण नहीं हो रहा। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, वेरी गुड। सी, दिस इज द आंसर। 30वें श्लोक में ही हम जो अभी श्लोक, नहीं सॉरी 30वां नहीं, 28वां श्लोक पे है ना। 28वें श्लोक में क्या बोला है अर्जुन ने? दृष्टवे मम, आगे शब्द क्या है? स्वजनम। ये तो मेरे, ये स्वजन है, ये मेरे संबंधी हैं, राइट। उसके बाद में वो आगे बोल रहे हैं कि मेरा मुख सूख रहा है और मेरे साथ ये हो रहा है। इसका मतलब करुणा नहीं है, क्या है? आसक्ति है, कि यदि वो मरेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। करुणा इसमें नहीं है। परंतु अर्जुन कारण क्या बता रहे हैं? करुणा का। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे समझे? व्हाट इज दिस फिनोमिनन? एक्चुअल में कारण कुछ और है, परंतु दिखा क्या रहे हैं? ओ, करुणावश छोड़ देते हैं, है ना। जैसे प्रसादम सर्विंग काउंटर लगा हुआ है इस्कॉन बीसीसी में, संडे फीस्ट में 600 लोग, 700 लोग, दशहरा फेस्टिवल है भी, ट्यूसडे को सर्विंग टीम रहेगी, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर आएगा प्लेट लेके, उसको कोई प्रभु जी डबल हलवा डाल देंगे। अरे प्रभु 1 चम्मच देने को बोला है, राइट। क्यों? अरे प्रभु जी खाने तो कोई बात नहीं, क्या है। और क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई जानने वाला है। होता है, होता है। हाँ? या फिर कोई जानने वाला आ जाए सर्विंग टीम में, कोई दिख जाए, अरे ये तो अपने जानने वाले हैं सर्विंग टीम में, तो 2 मिनट ज्यादा रुक जाते हैं वहां पे हम। और प्रभु जी कैसे, आप कैसे हैं, घर में सब ठीक है ना? है ना। दिखा हम क्या रहे हैं? करुणा। अरे प्रभु जी प्रसाद खाने दो प्रभु जी सबको, परंतु कुछ और। तो दिस इज व्हाट? कलियुगा हिपोक्रेसी, राइट। नाउ so we see so many, I mean so many people in the today's world. What are the two symptoms of Kali Yuga? Hypocrisy and quarrel. Kali Yuga is known by these two symptoms, hypocrisy and quarrel, right? लड़ाई झगड़े। So we try to disguise or cover up our weakness with philosophy. That's what we do in our life, right? We try to cover up our weakness with philosophy, right? Now Krishna is later going to confront Arjuna in the second chapter. Krishna is going to actually confront that अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये जो तुम बोल रहे हो ना ये सब। And this you are telling because of the attachments, not because of all these things. And ये सब जो रीजन तुमने दिए हैं, है ना, करुणा का, पाप होने का, फैमिली रिलेशंस के नष्ट होने का, 5 रीजन हमने नोट डाउन किए ना लास्ट टाइम। So Arjuna is going to Krishna is going to confront Arjuna because we hide
our weaknesses by a facade to show the world that देखो मेरी genuine problem है, मेरे genuine issue है. Why am I not able to practice Krishna consciousness? Oh, see, family है, job है, इतना काम है, कितना responsibility है मेरे ऊपर ऑफिस का. Are you chanting Hare Krishna? Where is the time? टाइम नहीं है जप करने का. अरे टाइम नहीं है मतलब क्या? इतने सब भक्त कर रहे हैं. Everyone has 24 hours, same time. Everyone more or less today has 4 family members or 3 family members. तो किधर जा रहा है टाइम? Because I don't want to become serious, because I don't want to purify myself, I give reasons. And that happens with me also. I confess. I confess. Every one of us is so. What is happening in Bhagavad Gita right now? Arjuna is undergoing a test. This test Krishna has thrown upon Arjuna. And now you have to pass this test. है ना? Every one of us also has to undergo our tests. Individually, every devotee, every person gets tests in their lives. जो जिस लेवल पे है उस लेवल का टेस्ट उसको मिलेगा. फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में आना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम पास करना पड़ेगा. आज कुछ बच्चों का एग्जाम है ना, राइट? जनीशा का एग्जाम है. तो हम बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं कि यदि हमको एग्जाम नहीं देना है, परंतु विपुष नहीं, एग्जाम तो देना है, नहीं तो आगे कैसे पढ़ोगे. तो हमारा भी भक्ति में रियलाइजेशन, साक्षात्कार जो है वो आगे तब बढ़ेगा जब वो हम उस लेवल का टेस्ट पास करेंगे, तो आगे साक्षात्कार बढ़ेगा. राइट? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हरे कृष्ण, कि विदाउट फिलॉसफी विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना सूखा ज्ञान का कोई महत्व नहीं. ठीक है? पहले चरित्र अच्छा बनना आवश्यक है, क्योंकि अभी चरित्र नहीं है अच्छा, तो हम अपने वीकनेस को, कमजोरी को हम कवर करते हैं ज्ञान से. तो ज्ञान तो बहुत है परंतु चरित्र नहीं है, तो हम ये ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं. हमारे फेस के ऊपर, हमारे मुख के ऊपर एक मुखौटा लगाने के. आई वेयर तिलक, कंठीमाला, धोती कुर्ता, देखो सच ग्रेट डिवोटी आई है, परंतु चरित्र नहीं. वो भक्त होने के लिए जो मेरी साधना का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मुझे वाउस, जो मुझे प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए, वो मैं नहीं करता हूं. सिर्फ एक्सटर्नल. सो आई एम वर्किंग ऑन माई एक्सटर्नल्स बट नॉट इंटरनली इन द हार्ट. राइट? सो टॉकिंग big philosophy does not matter. We can talk for hours, right? For example, we can talk for hours about chanting, but we cannot chant for a long time. है ना? भगवत नाम की क्या महिमा है. Every counseling meeting we spend like 15 minutes on just discussing about the holy name, है ना? परंतु 15 मिनट बैठ के जप करने को ध्यान पूर्वक नहीं होता है. जब हमारा ऐसे ही हो जाता है, घूमते फिरते. हाँ, सब किया लेकिन पता नहीं चला कब हो गया. हाँ. So a fool, ऐसा कहावत है ना, a fool is not a fool unless he or she opens his or her mouth. आजकल फेमिनिज्म का जमाना है, जहां पे ही और शी दोनों नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन ऐसी कहावत जब बोली जाती है तब माताएं नहीं बोलती कि यहाँ पे भी शी लगा. क्योंकि मूर्ख कौन होता है? सिर्फ पुरुष ही होता है. क्योंकि गधे पे कौन बैठता है? घोड़े पे कौन बैठता है? गधा. है ना? जोक समझा नहीं किसी? नहीं समझा? घोड़ी पे बैठता है ना शादी में, तो कौन बैठता है घोड़ी पे? गधा बैठता है. तो फूल इज नॉट अ फूल अनलेस ही ओपन्स हिज माउथ. सिमिलरली, I am a devotee or not is visible in my
character. Who is a devotee, who is not, is found when he opens the mouth. When he opens the mouth, what comes out? Does Krishna comes out? Does Krishna come out? कृष्ण कथा आती है बाहर, मतलब भक्त है. और कृष्ण को छोड़ के बाकी सब आता है तो भक्ति नहीं है. अभी भक्ति में अभी तक गहराई आई नहीं है. तिलक आ गया, घंटी माला आ गई, 16 माला भी आ गई, धोती कुर्ता आ गया, घर में विग्रह भी आ गए, हो सकता है, परंतु मुख खोलने पर क्या आते हैं? कृष्ण. कृष्ण कथा. when one who is eager to share Krishna, one who is eager to share his or her realizations, one who is eager to hear Krishna katha incessantly, लगातार, that shows whether somebody is a devotee. So we had discussed last time, Srila Prabhupada takes a particular theme in this purport of good qualities and the bad qualities, right? A devotee is full of good qualities, but a karmi, he may be having a lot of good qualities, but they are not good enough. And that's what Prabhupada says, right? So one example I wanted to give in this regard last time, which when did not get time, was or you, I'll give you a hint, you tell me. Great personalities whose past was very sinful, but they become devotees, and then they become worshipable acharyas, devotees. Valmiki, right? कौन थे? डाकू थे, परंतु नारद मुनि की कृपा हुई, पिछला जीवन उन्हें छोड़ दिया, और भक्त बन गए, है ना? तो भक्त बन गए तो सारे गुण आ गए ना, फिर गुरु बने, रामायण की रचना की, राइट? Then another similar example is Mrigari. Mrigari था ना, Mrigari used to kill animals in the jungle. He was a hunter, है ना? और जानवरों को मारता था. कैसे मारता था? उनका गला काटता था आधा, पूरा नहीं. Heard about halal? गला आधा काटना. और मृगारी क्या करता था? वो छटपटाते हुए देखता था उन पशुओं को. नारद मुनि आए उनसे मिल, मतलब नारद मुनि वहां से जा रहे थे जंगल से, उन्होंने देखा कि जानवर आधे गला कटे हुए मर पड़े हैं और छटपटा रहे हैं जंगल में. और उनको करुणा आई नारद मुनि को कि इतना घिनौना तरीके से कौन मार सकता है जानवरों को, ऐसा क्यों मारना चाहिए? इतना पापी कौन है जो उनको पूरा भी नहीं मार रहा है, आधा मार के छोड़ रहा है. तो बाद में उनका मिलना होता है मृगारी से. वो पूछते हैं कि ये क्या तुमने किया है? मृगारी कहता है हाँ मैंने किया. तो नारद मुनि एक संत है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं. नारद मुनि किसी को यही बोलेंगे ना कि अरे मत मारा करो. नारद मुनि ये नहीं बोलते मृगारी, उसको क्या बोलते हैं कि अरे उनको पूरा तो मार दो एक बार में. सोचो, इतना पापी व्यक्ति कि उसको एक संत आके ये नहीं बोल रहा है कि तुम मत मारो, उनको बोल रहे हैं कि अरे तुम पूरा तो मार दो इनको, कि ये तड़पे तो ना कम से कम. ऐसे थे मृगारी. मृगारी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं पूरा ही मार सकता हूं, परंतु उसमें मजा कम आता है. वो जो छटपटाते हैं ना, उनको देखने में मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं आधा गला काटता हूं. वही है हलाल आज भी. हाँ. तो वो मृगारी, और फिर नारद मुनि की कृपा हुई, उनको उन्होंने दिव्य चक्षु दिए, उन्होंने अपना भविष्य देखा, और फिर उनका हृदय परिवर्तन किया नारद मुनि ने, और वो भक्त बने, साधु बने. तो साधु बने. उसके बाद में जो लोग डरते थे पास में भी भटकने से, वो गांव को लंबा रास्ता तय करते थे, लोग उधर से घूम कर जाते थे. वाल्मीकि के केस में वो लोग वापस जंगल में आने लगे, उनको हार पहनाने लगे, उनसे कथा सुनने लगे वाल्मीकि से. मृगारी
का इतने अच्छे भक्त बने वो बाद में। नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में जा रहे होते हैं वो जंगल से, तो पर्वत मुनि को बोलते हैं कि अरे इधर मेरा एक शिष्य रहता है, चलो तुमको मिलवाता हूँ। नारद मुनि और पर्वत मुनि आ रहे हैं और मृगारी देखते हैं दूर से कि मेरे गुरु आ रहे हैं, तो भागकर आते हैं और भागते भागते अचानक रुक जाते हैं और फिर धीरे धीरे चल के इधर बहुत ही केयरफुली पैर रख के चलना शुरू करते हैं। तो बाद में निकट आते हैं, नारद मुनि पूछते हैं कि क्या हुआ, एकदम से तुम ऐसे क्यों चलने लग गए? बोले नहीं, बहुत चींटियां थी नीचे, तो वो मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए, उनका उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए मैं बच के चल रहा था। नारद मुनि पर्वत मुनि से मिलाते हैं, देखो ये मेरा शिष्य किधर था मृगारी और अभी कहाँ पहुंचा, साधु बना तो, भक्त बना तो, राइट। सो डिवोटी यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन, भगवती अकिंचन, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति यदि किसी की होती है, यस्य अस्ति भगवती, है ना, यस्य अस्ति भक्ति, किसकी भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, अकिंचन भक्ति जिसकी भी होती है, सर्वैर गुणैर तस्य तत्र समाहते सुरा। सर्वैर गुणे, सभी गुण, तत्र वहां पर समाहते, समाहित हो जाते हैं, कूट कूट कर भर जाते हैं, किसके जैसे, देवताओं के जैसे, देवताओं के जैसे गुण व्यक्ति में आ जाते हैं, भक्त में आ जाते हैं, है। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि कितने गुण एक जीवात्मा कितने गुण विकसित कर सकती है अपने अपने अंदर, हाईएस्ट टोटल कितने गुण होते हैं, 64। वो 64 गुण किसमें है, कौन, भगवान कौन है, कृष्ण, कृष्ण में 64 गुण, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे, चलो नीचे से ऊपर आते हैं, टॉप बॉटम अप अप्रोच। जीवात्मा कितने गुण धारण कर सकती है, 50, मैक्सिमम 50, और 50 गुण किसमें है, ब्रह्मा जी में। ब्रह्मा जी से नीचे जो देवी देवता है उनमें 50 गुण नहीं है, कम है, ठीक है। इस संसार में हमें गुण देखने को मिलते हैं, मिलते हैं, कोई ऑनेस्ट होता है, कोई चरित्रवान होता है, कोई सॉफ्ट स्पोकन होता है ना, कोई इक्विलिब्रियम, स्थित प्रज्ञ होता है, विचलित नहीं होता, धीर होता है ना, ज्ञानी होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। 50 इज मैक्सिमम ब्रह्मा जी में, और देवताओं में ये सब गुण है 50 से कम है। 50 से इस 50 के ऊपर आता है 55 गुण, 55 गुण किसमें है, शिव जी में, ठीक है। सेल्फ मैनेजर में हुआ था ये सब डिस्कस। फिर शिव जी से ऊपर 60 गुण आते हैं किसमें, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो सभी जो अवतार हैं कृष्ण के, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, है ना, सारे महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, इनमें सब में 60 गुण होते हैं। 4 और गुण हैं जो विशेष हैं भगवान में, वो है वो कृष्ण है, 4 गुण। वो 4 गुण कौन कौन से हैं, लीला माधुरी, माधुर्य कहते हैं इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। some other time we are digressing from the topic anyway, right. One of that quality, one of them is भक्त वत्सल। जितना कृष्ण दिखाते हैं अपना वात्सल्य भक्त के प्रति, उतने अन्य अवतार नहीं दिखाते, इतना एग्जिबिट नहीं करते। ओके, हाँ, और सो प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त नहीं है उसमें कितने भी गुण हो, वो गुण बेकार है, वो उनको उसको गुणी व्यक्ति नहीं कह सकते। होने को गुण दिख सकते हैं हमको इस संसार में भी उनमें, परंतु अगर ये भक्त नहीं है ना तो उसको गुण रहित ही मान सकते हैं। ऐसा क्यों, हमने चर्चा की थी पिछली बार। हाँ, वो क्या प्रॉब्लम होती है, वो यदि कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो गुण छोड़ सकता है अपने, पर वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे उदाहरण,
हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। हरि की अभक्तस्य, हरि का जो अभक्त है, कुतो महद्गुणा, कहां से, उसमें क्या ज्यादा गुण होंगे उसमें। मनोरथे ना सती धावतो वही, हम चर्चा की थी पिछली बार, है ना। मनोरथा, मनोरथे ना सती, मन के रथ के ऊपर आ सती बैठा है, और क्या कर रहा है, धावतो वही, भाग रहा है ना। तो इससे क्या प्रॉब्लम आता है, मन के रथ में भागने का मतलब क्या है। तो दुखी क्यों होता है मन, किस तरह की प्रॉब्लम। अभी इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं मेरे गुण, मैं इसमें अपने कोई व्यक्ति अपने गुण छोड़ सकता है उसमें, ये उधर की प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्यों आप, मैं अभक्त हूं परंतु मुझ में कुछ गुण है ना, तो उस प्रॉब्लम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो गुणी हुआ ना। कब छूटता है ये गुण, कब छोड़ देगा व्यक्ति। मन के रथ पे भागने का अर्थ क्या है, जब मेरा इंद्रिय तृप्ति जब रुकने वाला होता है, या उसमें कोई बाधा आती है मेरी इंद्रिय तृप्ति में, तो तुरंत मेरे गुण छूट जाते हैं। हमने लिया था कंस का उदाहरण, बहुत गुणी है, परंतु जैसे ही उसकी इंद्र तृप्ति के अंदर बाधा आई, कंस तेरी मृत्यु होने वाली है देवी के पुत्र से, वो जिस बहन के लिए रथ हाँक रहा था, उसी बहन के बाल पकड़कर उसको मृत्यु के घाट उतारने वाला था, है ना। जितना भी, यदि लॉ है, सिटीजनशिप का लॉ है, यहाँ पर संविधान है, वो संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनका आधार क्या है, मेरी इंद्र तृप्ति और तुम्हारी इंद्र तृप्ति, बस। जब तक वो दोनों चल रही है, उस कानून का आधार यही है कि ये दोनों चलती रहनी चाहिए। उसमें जानवरों का क्या, अगर किसी को मारा मतलब तुमने उसकी इंद्र तृप्ति को रोका, तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। तो हम म्यूचुअली हम आपस में अग्री कर लेते हैं कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर अस बोथ, कि तुम्हारी इंद्र तृप्ति भी चलती रहे और मेरी भी चलती रहे, उसको लॉ बना देते हैं। एनिमल्स का क्या, पक्षियों का क्या। What is the discussion about the soul? MIT, Prabhupada goes to MIT, Massachusetts Institute of Technology, premier ना, महान इंस्टीट्यूट है संसार का, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, प्रीमियर कॉलेजेस। प्रभुपाद वहां पे गए, वहां पे उनको इतने सारे डिपार्टमेंट दिखाए, वहां के प्रोफेसर्स ने, गाइड्स ने, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ दिस साइकोलॉजी एंड सो ऑन, राइट। प्रभुपाद पूरा टूर खत्म होने के बाद में प्रभुपाद बोलते हैं, वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल। ये आचार्य है, ही इज नॉट फैसिनेटेड, ये ठीक है तुम ये सब बहुत कर रहे हो, परंतु आधार क्या है, ये सबका आधार क्या है, इंद्रिय तृप्ति। जो भी कुछ हो रहा है डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट पूरे संसार में कहीं पे भी हो रहा है, आधार क्या है उसका, इंद्रिय तृप्ति, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लॉ ऑफ द लैंड, MIT में, उसका आधार भी क्या है, इंद्रिय तृप्ति। संस्कृत सीखेंगे फिर क्या करेंगे, उससे वेदों से कुछ तो निकालेंगे हमारे लिए, हमारी आयु कैसे बढ़े, दवाइयां कैसे बनाए, है ना। विदाउट गॉड इन पिक्चर, प्रभुपाद यूज्ड टू से, यूनाइटेड नेशंस इज यूनाइटेड नेशंस और डिवाइडेड नेशंस, बिकॉज एवरी ईयर वन फ्लैग इंक्रीजेस। यूनाइटेड, वी आर कमिंग टुगेदर, दैट मीन्स देयर शुड बी वन मोटो, वन कॉज, वन फ्लैग, है ना। बट दे आर गेटिंग डिवाइडेड, फ्लैग बढ़ रहे हैं उधर। प्रभुपाद सेड कि अनलेस यू एक्सेप्ट गॉड टू बी फादर, देयर विल नॉट बी ब्रदरहुड। भाई भाई कब तभी हो सकता है जब पिता हो, है ना। दीज ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस हैं और ये सब क्या बात करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बट हाउ कैन यू बिकम ब्रदर्स unless you accept father, supreme god to be the father, but they don't want to accept god। नहीं, भगवान को बाहर कर दो, गॉड की बात मत करो, वो एग्जिस्ट नहीं करता,
we kill our father, we murder our father, and he doesn't exist, then we want to live like brothers. How is it possible? Right? Okay, so this is the meaning. हाँ, मनोरथे ना सती धावतो बही, कि इंद्र दीप्ति जब मेरी मैं बाधा आती है तो सारे गुण. So the qualities in a non-devotee are like the decorations of a dead body. ऐसा बोलते प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में. Can you believe such strong statement? Decorations on a dead body. वो dead body को कितना भी डेकोरेट करो, मेहंदी लगाओ, काजल लगाओ, गोपी डॉट्स लगाओ, साड़ी पहनाओ, कितना भी सुंदर करो, परंतु क्या आने वाला है? बदबू आने वाली है उसमें से. It is going to stink and rot. It is only the only thing which you can do with this dead body is to burn it. That's it. तो वैसा ही है, एक व्यक्ति बहुत सारे गुण जिसमें है, वो डेड बॉडी के डेकोरेशंस के समान है, जो कि अभक्त है. ठीक है, ओके. सो आगे के श्लोक का हम ये पढ़ रहे हैं, परपोर्ट. Purport for verse 29. Can somebody read, please? शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और थोड़ा सा लाउडली पढ़िए प्रभु, सबको सुनाए. शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं. ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है. दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता. इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण. अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी. ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं. Please underline this last line of the purport. All these are due to material conception of life. Material conception, देहात्म बुद्धि. Material conception of life का मीनिंग क्या है? देहात्म बुद्धि का मीनिंग क्या है? देहात्म बुद्धि, भौतिक चेतना. हाँ, थैंक यू फॉर द ट्रांसलेशन. अर्थ मीनिंग मतलब समझें कैसे इसको? हाँ, देहात्म बुद्धि, राइट? सिंपल वर्ड. कंसिडरिंग oneself to be the body. मैं ये शरीर हूं, तो इस शरीर के लिए जो अच्छा है वो करूं, है ना? और मेरे आसपास मेरे संबंधी हैं, वो भी शरीर हैं. मेरा शरीर उनका शरीर, मेरी इंद्र तृप्ति उनकी इंद्र तृप्ति, उसमें जो हमारी चेतना रहती है, दैट इज देहात्म बुद्धि. और उसके कारण अर्जुन कांप रहे हैं. प्रभुपाद इज क्लैरिफाइंग. It is not a virtuous. See, compassion in itself is a virtuous quality. दैवीय गुण है करुणा होना, दया होना, है ना? परंतु अर्जुन में ये जो बता रहे हैं अर्जुन, कंपैशन, करुणा, उसको प्रभुपाद ने क्या क्लियर किया है? ये देहात्म बुद्धि के कारण ये वीकनेस है, ये कोई कंपैशन नहीं है ना? और साइड इंफॉर्मेशन. सो प्रभुपाद लिखते हैं शुरुआत में प्रपोर्ट में कि ये जो शरीर में जो विकार है, शरीर का कांपना और बालों का खड़ा होना, ऐसा रोम हर्षा से जाए थे ना, रोंगटे खड़े होना, ये दोनों कारण से आते हैं. डर से, भय से आते हैं, और दूसरा स्पिरिचुअल एक्सटेसी. स्पिरिचुअल एक्सटेसी में भी आते हैं. हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, महाप्रभु जब दर्शन करते थे जगन्नाथ का, या जब कीर्तन करते थे, तो वो निरंतर उनके आंखों से अश्रुधारा बहती थी. वो बहुत ऊपर तक उछलते थे कीर्तन में नृत्य करते हुए, और धम से नीचे धरती पर गिरते थे. उनका शरीर विकृत हो जाता था, हाथ ऐसे छोटे हो जाते थे, पैर लंबे हो जाते थे, हाँ, शरीर टेढ़ा हो जाता था, कांपता था शरीर. तो ये जो विकार है महाप्रभु को भौतिक चेतना के कारण नहीं आ रहे हैं कि अरे पता नहीं मृत्यु हो जाएगी क्या, मेरे शरीर छूटने वाला, इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान के अंदर इतने
गहराई से लीन है कि भौतिक चेतना में नहीं है, शरीर शारीरिक चेतना में नहीं है, तो चेतना पूरी भगवान में चली गई है, तो शरीर तो उतना अधिक आनंद उसमें मिलता है, वो आनंद से शरीर विकृत हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स होते हैं, है ना, प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स, मतलब जो भागवत सप्ताह ऑर्गेनाइज होता है, जिनके लिए लाखों लोग आते हैं और एक फी चार्ज करते हैं उसके लिए कि भाई एक कथा का 5 लाख, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, राइट। तो वहां पे लोगों को ग्लिसरीन की बोतल दी जाती है या फिर लोग लेके आते हैं घर से, इसलिए क्योंकि भगवान की कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, तो हमारे आंखों से भी आंसू आने चाहिए, है ना, और कम कभी छूटनी चाहिए। अब प्रेम है नहीं भगवान के प्रति, ना बोलने वाले का है, वक्ता का, ना श्रोता का है, तो वक्ता भी लगा लेता है ग्लिसरीन, श्रोता भी लगा लेते हैं, और फिर अश्रुधारा बहती है है ना, और टीवी चैनल में फिर रिकॉर्ड करके आस्था चैनल पे आता है, देखो ये महात्मा जी हैं, कितनी सुंदर कथा करते हैं, कितना रोते हैं लोग उनकी कथा में, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स प्लीज गिव मी स्पिरिचुअल एग्जांपल्स ऑफ अटैचमेंट। ये जो हो रहा है हर एक अटैचमेंट के कारण, ओह टाइम हो गया है ना, ओके, सो लेट अस एक काम करते हैं, नेक्स्ट परपोर्ट भी पढ़ते हैं, and then we'll discuss both the things together as per the time, maybe next time. So ये मतलब कि 30वें श्लोक का तात्पर्य, somebody else who is not ready yet. मीनू माता जी, you have भगवद गीता? 30वें श्लोक का तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। ये प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो हिंदू या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। राइट, सो क्लियरली प्रभुपाद सेज कि ये सब जो लक्षण आ रहे हैं अर्जुन में, वो करुणा के कारण नहीं आ रहे हैं। ये सब प्रभुपाद बार बार हैमर कर रहे हैं उसी पॉइंट को, भौतिक चेतना, भौतिक आसक्ति, मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, राइट, मटेरियल कंडीशंस, पर्सन। ये जो भागवतम का श्लोक उन्होंने रेफर किया है प्रभुपाद ने, भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्। Such fearfulness and loss of mental equilibrium takes place in persons who are too attached by material conditions, है ना? ठीक है, so shall we stop here? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।